بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ اور ہفتے کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اس خاص عمل کو آپ نے آج لازمی کرنا ہے۔ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کی یہ دوسری بہار ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر مہینے کی اپنی فضیلت اور برکت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ ربیع الثانی کی بھی اپنی برکتیں اور عظمتیں ہیں۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پتہ نہیں اگلے سال ربیع الثانی کا مہینہ ہمارے مقدر میں آئے یا نہ آئے، لیکن آج موقع ہے۔ بے روزگاروں کے لیے موقع ہے، پریشان حالوں کے لیے موقع ہے، مقروض کے لیے، تنگ دستوں کے لیے موقع ہے۔ آج جو بندہ بھی اپنے معاملات میں آسانی دیکھنا چاہتا ہے، جو بندہ بھی دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے پریشان ہے، وہ آج اس خاص عمل کو کر لے۔ اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیوں کو، تنگ دستیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ آج کے اس خاص عمل کی طرف ایک بہت ہی خاص بات ہے، کیونکہ اس عمل کے اندر آپ نے اللہ پاک کی افضلیت بیان کرنی ہے، اللہ پاک کی عظمت بیان کرنی ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی بڑائی بیان کرتا ہے، جو بندہ اللہ پاک کی عظمت بیان کرتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مال میں، اس کی عزت میں خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج کا دن بابرکت دن ہے۔ آج نصیب اور تقدیر سنوارنے کا وقت ہے۔ اگر آپ یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، پھر ایک سال بعد ہی آپ کو یہ موقع ملے گا۔ آج 24 گھنٹے کا وقت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اس عمل کو پورے دن میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ بس آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ جو بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کے دن اس خاص عمل کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، راتوں رات امیر ہو جائے۔ آج ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، لیکن میں آپ کو اللہ رب العزت سے حلال رزق حلال طریقے سے کمانے کا ایک بہت ہی بہترین عمل اور وظیفہ بتاؤں گا۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ نے یہ خاص عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آزاری کرتا ہے، اور آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کا دن ہے، جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جن میں اللہ دینے کو تیار ہے، لیکن کوئی مانگنے والا نہیں۔ کوئی بندہ اللہ پاک کی رضا نہیں چاہتا، کوئی بندہ آج اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کروانا چاہتا، اور جو بندہ کرانا چاہتا ہے وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، عمل کو سمجھے گا اور پھر اس عمل کو کرے گا۔ آج جو بندہ بھی منگتا بھکاری فقیر بن کر شرمندگی کی حالت میں سر کو جھکائے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا، اس عمل کو پڑھے گا، اللہ رب العزت پورے سال کے دن پھر دیں گے، اس کے نصیب کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ ربیع الثانی کی 8 تاریخ ہفتے کا دن ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب جہاں جیسے آپ کو موقع ملے، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت
बरकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिज़्क के लिए परेशान है, कोई तंगदस्त है, कोई मोहताज है, कोई किराए के मकान में रहता है, अपना ज़ाती मकान ख़रीदना चाहता है। आपका जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, अपने ख़ास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो अल्लाह अकबर का वजीफ़ा है। अल्लाह अकबर ये अल्लाह की बड़ाई का ज़िक्र है। जो शख्स अल्लाह की बड़ाई बयान करता है तो इसके लिए अल्लाह गैब से रास्ते पैदा करता है। अल्लाह फरमाता है, ये कौन मेरा ज़िक्र कर रहा है? फरिश्ते आपका नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इस बंदे की हाजात को पूरा किया, ये जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरा कर दे। आपने अल्लाह अकबर को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अल्लाह अकबर एक बार हो गया, अल्लाह अकबर दो बार हो गया, अल्लाह अकबर तीन बार हो गया। इस तरह से आप अल्लाह अकबर को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कुरान कहता है, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तेरा रब हर चीज़ पर कादिर है, जो राज़ाक भी है, खालिक भी है, मालिक भी है। जो लोग अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 गुना ज़्यादा रिज़्क अता फरमाता है। 70 रिज़्क के दरवाज़ों को खोल देता है। अल्लाह रास्तों से रुकावटें हटा देता है, बंदिशें तोड़ देता है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है, कामयाबी मुकद्दर होती चली जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ते ही इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह अकबर पढ़ने वाले पर खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर को सिर्फ 11 बार आपने पढ़ना है। कितना वक्त लगेगा? आपने 11 बार अल्लाह अकबर पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह के लाडले बन गए। अब अल्लाह से अपनी हाजत पूरा करवाने का वक्त है। अब अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। अब अल्लाह से अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने का वक्त है। अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरान पाक की बहुत ही ख़ास और छोटी सी सूरत है, जिसे सूरह इखलास कहा जाता है। सूरह इखलास जो अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है। सूरह इखलास आपको अल्लाह के करीब करती है, अल्लाह का कुर्ब अता करेगी, अल्लाह पाक की अमान अता करेगी। आप यकीन करें कि जब आप इस अमल को पढ़ेंगे तो आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने के लिए काबिल कबूल हो जाएंगे, क्योंकि इतना ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है और पढ़ने में भी ये सूरत बहुत ही आसान है। एक बार सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरह से आप सूरह इखलास को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 100 बार पढ़नी है। आज जो बंदा तंगदस्त है, जो बंदा रिज़्क के लिए परेशान है, ये सूरह पढ़ने से इसके रिज़्क के तमाम मामलात, इसकी तमाम परेशानियाँ, तमाम तंगदस्तियाँ सब दूर हो जाएंगी। इस सूरत को अगर एक बार पढ़ा जाए तो 10 पारों का सवाब मिलता है। ये सूरत अगर 3 बार पढ़ी जाए तो एक मुकम्मल कुरान पाक का सवाब मिलता है। और जब आप लोग सूरह इखलास एक तस्बीह पढ़ेंगे यानी 100 बार पढ़ेंगे तो खुद सोचें अल्लाह पाक आपको कितना नवाजेगा। आप अल्लाह पाक के कितने करीब हो जाएंगे, आप अल्लाह पाक के लाडले हो जाएंगे। अगर एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो तो माँ अपना तन मन धन सब बेचकर अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करती है। आपको अल्लाह पाक के लाडले हैं, जो कि 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, जिसकी ताकत और जिसकी वादानियत और जिसकी अफजलियत का आलम यह है कि वो जिस चीज़ को कहे कुन फयाकुन वो हो जाती है। आज ये अमल आपके लिए कुन फयाकुन वाला ही है। दूसरे नंबर पर आपने सूरह इखलास को 100 बार पढ़ लिया तो अब आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है।
तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है ये सूरह इखलास का वजीफ़ा है। ये सूरह बहुत ख़ास है और इस अमल को जो बंदा मुसलसल 3 दिन कर लेता है, अल्लाह पाक इसकी कामयाबी के परवाने जारी फरमा देते हैं। ये तस्बीह नहीं, ये दौलत का समंदर है। जब आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करेंगे, आप लोग खुद हैरान हो जाएंगे। अब आप सूरह फातिहा को ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 41 बार पढ़ना है और जिस बंदे पे अल्लाह पाक का एक बार रहम हो जाए, एक बार रहमत का साया हो जाए, एक बार नज़र करम हो जाए, एक बार नज़र रहमत हो जाए, फिर इसे मांगना नहीं पड़ता, इसको हर चीज़ खुद मिल जाती है। वो सिर्फ अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह पाक इसकी हर हाजत को पूरा फरमा देता है, फिर वो मुस्तजाबुद दावत हो जाता है। आज आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ के देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मामलात में बेशुमार आसानी हो जाएगी। इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहले नंबर पर आपने 11 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना है, फिर दूसरे नंबर पर आपने 100 बार सूरह इखलास को पढ़ना है, फिर तीसरे नंबर पर आपने 41 बार सूरह फातिहा को पढ़ना है। ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आपने इतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। जब आप ये वजीफ़ा कर लें तो इसके फ़ौरन बाद अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआ मांग लें। जितनी आपकी हाजतें हैं, जितनी आपकी परेशानियां हैं, इन सब के लिए दुआ ज़रूर मांगा करें। हमें दुआ मांगनी नहीं आती, हमें लगता है कि सिर्फ हाथ उठा देना, अल्लाह से लफ्ज़ों को हेर फेर करके मांग लेना दुआ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ऐन इबादत है और इबादत के कुछ उसूल होते हैं। दुआ दिल की इबादत है और दिल की इबादत के लिए दिल का पाक साफ होना बहुत ज़रूरी है और दिल की पाकीज़गी गुनाहों की माफ़ी से हासिल होती है। अपने दिल को गुनाहों से पाक करें, आंसू बहाएं, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निदामत तौबा है, गुनाहों पर निदामत गुनाहों को माफ़ कर देती है। अब गुनाह माफ़ हो गए, अब क्या करें? अब जिस पाक ज़ात के सामने अपनी दरख्वास्त पेश की जा रही है, इसकी हम्द व सना लाज़मी है। अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए, दिल की सरज़मीन को निदामत किया जाए। जब दिल नरम होता है तो इससे दी गई सदाएँ में बहुत असर होता है, वो रद्द नहीं होती हैं। अपनी बात मनवाने का आंसू एक बहुत खूबसूरत तरीका है। जब हमारे सामने कोई अपना मसला बताते रो पड़ता है तो हमें कितनी परेशानी हो जाती है। हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि किसी तरह से इसकी तकलीफ़ ख़त्म कर दें। तो सोचें, हमारा अल्लाह तो हमसे बहुत प्यार करने वाला है। वो अपने बंदों के आंसू की लाश रख लेता है और इसकी इसकी रज़ा अता कर देता है। इसलिए दुआ करते हुए अपने सच्चे जज़्बात का इज़हार करें। अल्लाह के सामने नहीं रोना तो किसके सामने रोना है? हमारा अल्लाह ही तो है, वो सब जानता है लेकिन हमसे सुनना चाहता है। इससे बातें किया करें, अपनी हर एक बात इसे बताया करें। वो दिल के इरादों से वाकिफ़ है, आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। सबसे अहम चीज़ कामिल यकीन है और कामिल यकीन के साथ जो मांग लिया जाए वो मिल जाता है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने वालों के लिए ही मौज़े होते हैं। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।